Good morning, students. In our last lecture, we have studied about least upper bound, and this is our third lecture on sequence series. And today we are going to study about greatest lower bound. First of all, let us see what do you mean by greatest lower bound. अगर S कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का एंड L कोई भी एक रियल नंबर है, L को हम इस सेट S का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहेंगे? अगर L पहले क्या हो? लोअर बाउंड ऑफ S. L must be a lower bound of S. What do you mean by lower bound of S? Suppose this is your set S and L is such a number such that every element of S must be greater than or equal to this number. How will you write down this mathematically? That is, for every x belongs to S, x must be greater than or equal to L. Then this L is said to be lower bound of S. फाइन. तो पहली कंडीशन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए क्या है? दैट नंबर शुड बी अ लोअर बाउंड ऑफ एस. देन second condition is, if there exists any other lower bound of S, L dash is suppose any other lower bound of S, then L dash must be less than equal to L. It means L must be greatest among all the lower bounds. Among all the lower bounds of S. फाइन. यानी कि ये सारे S के लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होगा दैट इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S. और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? पहले यू हैव टू प्रूव दैट L इज अ लोअर बाउंड. इट मीन्स यू हैव टू शो एवरी एलिमेंट ऑफ S इज ग्रेटर देन इक्वल टू L, and then you have to show if there exists any other lower bound of S, then it should be either less than or equal to L. Then this L is said to be greatest lower bound of S. This is also said to be infimum. हम greatest lower bound को infimum भी कहते हैं सेट का. ठीक है. अब greatest lower bound वैसे बेसिकली इसकी डेफिनेशन यहीं से क्लियर होती है. इट इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ द सेट. एस सेट के जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उन सब में से सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होगा दैट इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. फाइन. सो आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स from which it will be more clear to you that what is the greatest lower bound. So now first we take the example that is closed set 1 to 3. If we take the closed set 1 to 3, as we can see every element, now let's draw this set on the number line. इस सेट का हर एक एलिमेंट 1 से बड़ा है. इट मीन्स फॉर एवरी x belongs to the closed interval 1 to 3, x is greater than or equal to 1. It means 1 is what? It is a lower bound. Even every element is greater than equal to 0, so it is also a lower bound. बट इन सारे लोअर बाउंड्स में से इवन सिर्फ ज़ीरो ही नहीं, इनके बीच में 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, इवन 0 से छोटे भी जितने भी नंबर्स हैं, दे ऑल आर लोअर बाउंड्स ऑफ फॉर दिस सेट. फाइन. ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के लिए क्या हो जाएंगे? लोअर बाउंड्स. अगर ये सारे लोअर बाउंड्स हैं तो इनमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है? 1. सो देयरफॉर 1 इज सेड टू बी greatest lower bound of the set closed interval 1 to 3. Here 1 is such a lower bound, greatest lower bound, which belongs to this set also. 1 ऐसा greatest lower bound है जो इस set में belong भी कर रहा है. But it is not always necessary that greatest lower bound of a set belongs to that set. Like अगर मैं closed की जगह open interval 1 to 3 ले लूँ, उस केस में क्या होगा? अगेन 1 से सारे एलिमेंट्स क्या हैं इस सेट के? बड़े, तो 1 इज अ लोअर बाउंड.
और इससे बाकी सारे जो छोटे एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल्सो लोअर बाउंड्स फॉर दिस सेट, बट वन इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दोज लोअर बाउंड्स, देयरफॉर इट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ open interval 1 to 3, but 1 does not belongs to this open interval 1 to 3. So it means greatest lower bound उस सेट में बिलोंग करे या ना करे ये ज़रूरी नहीं है. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो सेट का एलिमेंट हो भी सकता है जिस सेट के हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, और उस सेट के बाहर का एलिमेंट भी हो सकता है. फाइन. Now next thing is if I take this set S, तो ये set basically हुआ क्या, if I put n equal to 1 this will be 1, if I put n equal to 2 it will be 1 by 2, 3 put करें तो 1 by 3, 4 put करें तो 1 by 4 and so on. And from here you can easily see as we are putting the value of n and it is increasing, अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं और वो बड़ी होती जाएगी बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, जैसे जैसे ये नंबर बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ये नंबर किसके नियर आएगा, नियर टू ज़ीरो. इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट एनी स्टेज बट द नंबर्स आर वेरी क्लोज टू ज़ीरो एंड 1 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सेट. सो इसका मतलब इस सेट में सारे एलिमेंट जो हैं दे ऑल आर ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना. वी कैन सी एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट is greater than equal to 0. It means 0 will act as a lower bound for this set. And अगर मैं 0 से छोटे नंबर्स लूँ वो सारे नंबर्स भी इस सेट के लिए क्या हैं, लोअर बाउंड्स. फाइन. देन इट मीन्स क्या हुआ, 0 इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द लोअर बाउंड्स. बाकी सारे लोअर बाउंड्स जो हैं वो 0 से क्या हैं, छोटे. तो इसका मतलब 0 क्या हुआ, सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा. तो 0 क्या बना इस सेट के लिए, इट इज़ अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट एंड 0 इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है. देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिलोंग्स टू दैट सेट. फाइन. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज if I take set of integers then इस सेट में क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे सारे एलिमेंट्स इस सेट के बड़े हों, नो, बिकॉज देर इज नो बाउंड फॉर दिस सेट. ना तो लोअर बाउंड है ना ही अपर बाउंड है. हम ऐसा कोई एलिमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते सच दैट इस सेट के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से क्या हों, बड़े. इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सेट हैज़ नो लीस्ट अपर बाउंड एज वेल एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ना तो सारे एलिमेंट, कोई एलिमेंट ऐसा है जिससे सारे एलिमेंट इसके छोटे हों सेट के, ना कोई रियल नंबर ऐसा है जिससे सारे एलिमेंट इस सेट के क्या हों, बड़े. तो ना ही इसका कोई लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा और ना ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा. फाइन. सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ s इज इक्वल्स टू -1, -1 by 2, -1 by 3 and so on. Again these numbers are less than 0 and all the numbers are greater than -1. Even -1 is also included here, है ना. So it means all the numbers of this set for every x belongs to s they all are greater than or equal to -1. and अगर मैं -1 से छोटे एलिमेंट्स लूँ तो वो सारे एलिमेंट्स भी रियल नंबर्स भी किस तरह से एक्ट करेंगे, लोअर बाउंड फॉर दिस सेट. वाई लोअर बाउंड, because all the elements of this set are greater than these numbers, so these all are lower bounds and greatest among all these lower bounds is -1. So what is -1? In this case -1 is greatest lower bound of s. Fine. So now you have to take more examples and work out on them. ठीक है, find out the greatest lower bounds of those sets. Now next result is greatest lower bound of a set if exist is unique. Similar theorem we have proved for least upper bound, but now we'll do the theorem for greatest lower bound. Now what we have to prove कि अगर किसी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक.
तो हम मान लेते हैं लेट S बी एनी सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड ये भी मान लेते हैं कि लेट L and L dash be two greatest lower bounds of S। दो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिए। अब हमें प्रूफ करना है कि दोनों लोअर बाउंड्स क्या होने चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स क्या होंगे, सेम। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, यूनिक। पहले मान लेते हैं लेट L बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S। अगर L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है देन L डैश भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो कम से कम ये लोअर बाउंड तो है ही है ना। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब अगर मैंने L को एज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माना तो L डैश एक लोअर बाउंड तो है ही है, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू L डैश। L डैश मस्ट बी ग्रेटेस्ट, है ना। नाउ सिमिलरली इफ आई सपोज L dash be the greatest lower bound of S, then L must be less than equal to L dash। क्यों? क्योंकि जब हमने L को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माना था तो ये लोअर बाउंड तो था ही, क्योंकि हर एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो लोअर बाउंड तो होता ही है, तो L डैश मस्ट बी लेस देन इक्वल टू L। बट अगर अब L डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ये सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा होगा, तो ये L से भी क्या होगा, बड़ा या उसके इक्वल। Now from these two what we get, both are less than equal to each other, it means both must be equal। फाइन। सो इट मीन्स दोनों के दोनों ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो हैं वो आपस में क्या आएंगे, सेम। इट मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज ऑलवेज यूनिक। फाइन। The next result is prove that the smallest element of the set, if exist, is the greatest lower bound of the set। हमने ऐसा ही रिजल्ट लीस्ट अपर बाउंड के लिए भी प्रूव किया था। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट फॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स। पहले तो इसका मतलब समझो क्या है कि अगर सेट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उस सेट का। ठीक है, हमें प्रूव करना है। ये जरूरी नहीं है ना, हमने पढ़ा था कि हर एक सेट का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होता है, वो सबसे छोटा एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट जिससे सारे एलिमेंट्स उस सेट के क्या हैं, बड़े। तो हर सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करे वो जरूरी नहीं था। तो इसमें क्वेश्चन में भी यही है कि अगर किसी सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दैट सेट। सो हम मान लेते हैं लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट of real numbers and L be the smallest element of this set। हमने कहा ना कि अगर एग्जिस्ट करता है तो हम मान लेते हैं कि इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ S। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ S? स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मतलब सेट के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से क्या होंगे, बड़े। For every x belongs to S। अगर नहीं समझ आता you can draw a number line and understand it from there। कैसे? Suppose ये सेट S है, then वो सबसे छोटा एलिमेंट S का सबसे छोटा एलिमेंट जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हों, बड़े। That number L is said to be smallest element of that set। How will you write it mathematically? Every element of S is either greater than और इक्वल टू L। सारे एलिमेंट उससे क्या होने चाहिए, बड़े। फाइन। नाउ हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट L इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना था? पहली कंडीशन, इट शुड बी अ लोअर बाउंड, देन इट इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द लोअर बाउंड्स। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया ना कि सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं, सारे एलिमेंट इस L से बड़े हैं, तो ये क्या बन गया, इट्स अ लोअर बाउंड। नाउ टू प्रूव इट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वी हैव टू शो
L is less greater than among all the lower bounds. It is greatest lower bound, so it is greater than all the lower bounds. So we suppose that L dash is any other lower bound of S. हमने क्या लिया, एक और लोअर बाउंड कंसीडर कर लिया S का, दैट इज L dash. नाउ L इज एन एलिमेंट ऑफ S और हर एलिमेंट S का क्या होता है, लोअर बाउंड से बड़ा. इसका मतलब L भी S का एलिमेंट है, तो L भी हर लोअर बाउंड से क्या होगा, बड़ा. और L dash लोअर बाउंड है, इसका मतलब L जो है वो या तो इस लोअर बाउंड से बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा. So it is a lower bound which is greater than or equal to every lower bound of S. Therefore, L is said to be greatest lower bound of S, and this you have to prove. Fine. Now next result we have to prove, that is, if S is a non-empty subset of real numbers which is bounded below, it is given to you that this set is bounded below, then कोई भी नंबर L इस सेट S का infimum कब होगा. infimum मतलब greatest lower bound कब होगा. if x is greater than equal to L for every x belongs to S and for each epsilon greater than 0. हम कोई भी एक नंबर एप्सिलॉन जो पॉजिटिव हो, कोई भी एक एप्सिलॉन पॉजिटिव लें, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर ऐसा कम से कम जरूर एग्जिस्ट करेगा S में, सच दैट x is less than L plus epsilon. इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम नंबर लाइन पे चेक करते हैं. सपोज दिस इज योर L एंड दिस इज योर सेट S. फाइन. पहली कंडीशन कही हमने कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू L होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S. यानी कि जो ये L है हमारे पास, ये S के सारे एलिमेंट से छोटा है. सेकंड, अगर इस L में कुछ थोड़ा सा छोटा भी ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, वो L से बड़ा बन जाएगा. तो इट मींस L प्लस एप्सिलॉन. देन देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स ऑफ S which are less than this L plus epsilon. This you have to prove कि अगर ये greatest lower bound है तो इसमें कुछ जो थोड़ा सा भी ऐड करने पर S सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो इस L plus epsilon से क्या हो जाएंगे, छोटे. ठीक है. सो अगेन लाइक लीस्ट अपर बाउंड के लिए हमने लीस्ट अपर बाउंड की जो पहले डेफिनेशन की थी और ये इस तरह की डेफिनेशन को इक्विवेलेंट शो किया था. सो नाउ यू हैव टू प्रूव कि अगर कोई चीज, कोई नंबर S का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो वो इन दोनों कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई. और अगर कोई नंबर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देन दैट इज नथिंग बट infimum of the set or greatest lower bound of the set. It means you have to prove if L is infimum of the set. L infimum कब होता है, पहली बात तो L को हम greatest lower bound कब कहते हैं of any set S. क्या कंडीशन थी, फर्स्ट इज L is lower bound. सबसे पहले क्या होना चाहिए था, L lower bound होना चाहिए, है ना, lower bound of S. एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि अगर कोई और L dash is lower bound of S, then L must be greatest among all the lower bounds. So now इस theorem का मतलब क्या है, you have to prove these two statements are equivalent, है ना. So let's prove it. How will you prove? First is, मान लेते हैं जो L है वो infimum है. Let L be greatest lower bound of S. इसका मतलब ये दोनों conditions true हैं and you have to prove these two conditions. Fine. So अगर L lower bound है तो इसका मतलब क्या, greatest lower bound है, this implies L is lower bound of S. और L अगर lower bound है इसका मतलब for every x belongs to S, x must be greater than equal to L. This shows your first condition, है ना, that is satisfied. Now you have to prove the second part. सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि कंडीशन ट्रू
नहीं है, मतलब हम इससे उल्टा लेके चलते हैं. वी सपोज दैट we suppose that for every epsilon greater than 0 and for every x belongs to S, x is greater than or equal to L plus epsilon. अब ये अगर कंडीशन होल्ड करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि L प्लस एप्सिलॉन से इस सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हो गए. तो L प्लस एप्सिलॉन क्या बन गया? इज लोअर बाउंड. लोअर बाउंड बन गया ना. क्यों क्यों बन गया ये लोअर बाउंड? बिकॉज एस के सारे एलिमेंट्स एस एल प्लस एप्सिलॉन से क्या हो गए? बड़े. तो ये नंबर क्या बन गया? एल प्लस एप्सिलॉन. इट इज अ लोअर बाउंड ऑफ एस. अगर ये लोअर बाउंड है तो एल हमने क्या सपोज किया है? एल इज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. इसका मतलब एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन. क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसी भी और लोअर बाउंड से क्या होता है? या तो बड़ा या उसके इक्वल. इसका मतलब एल भी एल प्लस एप्सिलॉन से क्या होगा? या तो बड़ा या उसके इक्वल. बट ऑब्वियसली एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? एल प्लस एप्सिलॉन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एल, which contradicts the fact that L is greater than equal to L plus epsilon. So contradiction आ गई. इसका मतलब हमने जो suppose किया था that is wrong. So it means this is a contradiction. अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट वी हैव सपोज दैट इज रॉन्ग. और हमने क्या सपोज किया था कि हर एप्सिलॉन के लिए एक एलिमेंट जरूर ऐसा मिलेगा. हर एक एलिमेंट एस का जो होगा वो क्या होगा? दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन. तो ये पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा एस में. देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट x is less than L plus epsilon. सारे के सारे x जो हैं वो L plus epsilon से बड़े या उसके इक्वल नहीं हो सकते. So this proves your first side. Now we prove the converse part. कन्वर्स कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो कन्वर्स में हमें प्रूव क्या करना है? लेट्स सी दैट. अब हमें प्रूव करना है कि जो हमारी ये दोनों कंडीशंस हैं जो हमें गिवन थी, these two conditions we have to prove that अगर ये दोनों conditions hold करती हैं then L क्या होगा? greatest lower bound of S. This you have to prove. How will you prove this? Now अगर ये दोनों conditions hold कर रही हैं तो first condition क्या कहती है? First, according to first condition your x is greater than equal to L for every x belongs to S. इसका मतलब ये L क्या हो गया? लोअर बाउंड ऑफ S and which gives your first condition here. इसका मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो L ऑटोमेटिकली क्या बन गया? लोअर बाउंड ऑफ S. नाउ वी हैव टू प्रूव कि अगर L डैश कोई और लोअर बाउंड है तो L मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू L डैश. ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? टू प्रूव द कन्वर्स पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट अगर L डैश is any other lower bound of S, अगर L डैश कोई और लोअर बाउंड है S का तो L को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड शो करने के लिए हमें क्या शो करना है? L must be greater than equal to L dash. So we have to prove L must be greater than equal to L dash. तो हमने मान लिया let this be a any other lower bound of S. ठीक है ना. हम इसे उल्टा मान लेते हैं. we consider L is less than L dash. अगर L less से lesser है तो इसका मतलब L dash minus L is greater than 0 and we consider this number is equal to epsilon. अब जो given condition थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर epsilon के corresponding there exists an x belongs to S such that x is less than L plus epsilon, है ना. तो इसका मतलब अगर हम epsilon की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं what we get? x is less than L plus epsilon की वैल्यू पुट कर दो L dash minus L. So what we get? X is less than ये L और ये L क्या हो जाएगा? कैंसल आउट.
is less than L dash. So from here what we get? L dash क्या माना था हमने? It's a lower bound. Lower bound का मतलब S का हर एक एलिमेंट इस एलिमेंट से क्या होना चाहिए? बड़ा. बट हमारे पास क्या आ गया कि देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू S विच इज लेस देन दिस L dash. एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया S का जो इस L dash से छोटा है, तो इसका मतलब L dash is not a lower bound. L dash is not a lower bound of S, which is a contradiction, क्योंकि हमने सपोज किया था कि L dash क्या है? लोअर बाउंड. तो यहां से क्या आ गया? L dash लोअर बाउंड नहीं हो सकता. इट मीन्स इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब जो आपने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग, and that what we have supposed that L is less than L dash. So ये possible नहीं है. तो क्या possible होगा? L must be greater than equal to L dash, and hence it is proved that L is greatest among all the lower bounds. Therefore it is a greatest lower bound of the set S. This is all about today's lecture. Thank you very much.